is a pronoun is a word that is used in place of a noun. किसी नाउन की जगह पर जो दूसरा वर्ड यूज किया जाता है उसे प्रोनाउन कहते हैं. मिसाल के तौर पर असद saw a lion in the forest. He thought that lion would attack him. He thought that lion would attack him. These underlined word in this example are pronoun. मसलन हमने कहा कि पहले असद saw a lion. असद एक नाउन है, उसने जंगल में एक शेर देखा. He thought that lion would attack him, कि लायन उस पर अटैक करेगा. तो अब हमने असद की जगह पर ही यूज़ किया और फिर अटैक हिम हमने हिम यूज़ किया. ये दोनों हिम और ही दोनों लफ्ज़ जो है हमने असद के लिए इस्तेमाल किए. सो दीज आर कॉल्ड एज प्रोनाउन. सो व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोनाउन? इट्स वेरी सिंपल डेफिनेशन. यू पीपल ऑलरेडी नो इट वेरी वेल. सो क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोनाउन. English pronouns can be divided into several categories: personal, indefinite, reflexive, reciprocal, possessive, demonstrative, interrogative, reciprocal, and relative. Pronouns are classified as given here in the following list. So look at now the number one, personal pronoun. What is personal pronouns? So there is a list that is given over here. You can have a look on that. Personal are subject pronouns. I, we, he, she, it, they, we. These are all called as personal pronoun, and these are also called as subjective pronoun as well. So these are the subject pronoun. Next, object pronouns. Me, you, him, her, it, us, you, them. Those are used in place of an object. So that's why these are called object pronoun. The third one is demonstrative pronoun. The list is given here as this, that, these, and those. Similarly, reflexive pronouns. So myself, yourself, himself, herself, itself, ourself, and yourself, and themselves. These are called as reflexive pronoun. Then is intensive pronoun. Intensive pronoun: myself, yourself, herself, itself, ourself, and yourself. So these are also used in place of a reflexive pronoun as well. So the next one is possessive pronoun list. Mine, yours, his, hers, ours, yours, and theirs. There is a relative pronoun list: who, whom, which, whose, and that. The last one, next one, indefinite pronoun: another, anybody, anyone, anything, each, either, enough, everybody, everyone, everything, less, little, much, neither, nobody, no one, nothing, one, other, somebody, someone, something, both, few, fewer, many, other, several, all, any, more, most, none, some, such as. These are some example of the indefinite pronoun. Then we can find interrogative pronoun: who, whom, which, what, whose, whoever, whatever, whichever, and whomever. So these are normally words, those are used for interrogation. It means particularly when we are asked questions. So these are also known as WH family pronoun. So there is a chart. Now you can have a look on the chart of personal pronoun. So look at now, the table has been divided into 6-7 column and particularly 3-4 rows. So the first pronoun, second pronoun, and the third pronoun. There are some nominative cases. Nominative are subjective cases. Look at now, I, we, thou, you, he, she, it, and they are used in nominative cases. And the word thou was used in past, but it is no more in use. So we use only you instead of that. Then is a possessive case: my, our, they, thine, your, his, her, its, and their. In the similar way, the second case is mine and ours. In the similar way, yours, hers, and theirs. तो बाज़ का पोजेसिव नाउन जो आपकी मलकियत को शो करते हैं, दिस इज़ माई बुक, तो माई और माइन का वर्ड जो है ये इस तरह अवर और अवर्स का वर्ड जो है, ये जो तमाम वर्ड्स हैं ये पोजेशन को शो करते हैं. ऑब्जेक्टिव केस में मी, अस, यू, हिम, हर, इट्स और देम का इस्तेमाल किया जाता है. तो ये एक लिस्ट जो है आपके सामने, इससे आप इनमें डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं. सो हाउ टू यूज़ दीज पर्सनल प्रोनाउन? टाइप ऑफ प्रोनाउन with some examples. The different type of pronoun in English are discussed here with some example as follow. We briefly discuss some of the different words that are classed as pronoun. However, there are also different type of pronoun. Most often pronoun fall into one
of 9 categories, and you will find now. So here let's see, we will now take a look at each of these pronouns. Number 1, personal pronoun. ये याद रखना ज़रूरी है कि ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इल्म तो होता है लेकिन क्लैरिटी नहीं होती, तो ज़रा थोड़ा सा इनके ऊपर तवज्जो दें ताकि आपको ये एग्ज़ाम के अंदर हर तरह की डिस्टिंक्शन करना जो आ जाए और उसका इस्तेमाल कैसे, और फिर इनमें हम जो मिस्टेक्स करते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि किस तरह से हमने इनको यूज़ करना है, क्योंकि अक्सर हम जब प्रोनाउन से वाकिफ़ नहीं है तो उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो इसलिए ये सारी लिस्ट का जानना भी ज़रूरी है। तब हमारे पास है पर्सनल प्रोनाउन। दिस टाइप ऑफ प्रोनाउन इज़ यूज्ड टू रिफर टू अ पर्सन। In this category, you will see words such as I, we, you, they, he, she, it वगैरह। तो ये सारे पर्सनल प्रोनाउन हैं जो किसी शख्स की जगह पर इस्तेमाल होते हैं, तो ये सब्जेक्ट भी हैं, पर्सनल प्रोनाउन है। So look at now, there are two types of personal pronoun, subject and object pronoun. When the person or thing is the subject of the sentence, so the subject pronouns are used. अब जब आपका when the person or a thing is the subject of the sentence, वही सब्जेक्ट है, तो फिर हम उसके लिए ये वर्ड यूज़ करते हैं। मसलन देखें, बड़ी सिंपल सी बात है, बेशुमार दफ़ा इस्तेमाल कर चुके हैं। सब्जेक्ट प्रोनाउन लिस्ट क्या है? आई, यू, ही, शी, इट, वी और दे वगैरह जो है ये आपकी इस लिस्ट में आएंगे। आप देखते हैं इनके इस्तेमाल बड़े सिंपल और सादा से हैं, आगे जाकर कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें जब आएंगी, जब हम इनको यूज़ करेंगे। सो अभी तो इंट्रोडक्शन है इन सब का। सब्जेक्ट प्रोनाउन एग्जाम्पल क्या? आई लाइक टू वॉच TV, but he doesn't. You can't judge a tree by its bark. She struck him on the nose. He studies hard to pass the exam. Look at now here in the first sentence we use I, in the second you, in the third she, and in the fourth he. These all 4 words are called as subject. So these are the subject pronoun because we are indicating these word over here instead of some Aslam, Akram, Amjad और एनीबॉडी एल्स, तो हम उनकी जगह पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यही प्रोनाउन की डेफिनेशन है। इस तरह से ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस आर यूज व्हेन द पर्सन और अ थिंग इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। जब वो ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस हो तो फिर ये वर्ड हम यूज़ करते हैं, मसलन मी, यू, हिम, हर, इट, अस, यू और देम वगैरह। एग्जाम्पल देखें, इट विल बी वेरी क्लियर टू यू व्हेन यू जस्ट लुक एट द एग्जाम्पल। सोफिया लाइक्स मी बट नॉट हिम। यहाँ पे लाइक्स मी, मुझको, मैं ऑब्जेक्टिव केस हूँ। अब यहाँ पर तो सोफिया जो है वो क्या करें? लाइक्स मी का वर्ड जो हमने यूज़ किया ये ऑब्जेक्ट है, बिकॉज लुक एट नाउ द सोफिया इज हियर इन दिस सेंटेंस, सोफिया इज द सब्जेक्ट, आई एम द ऑब्जेक्ट ऑफ द सोफिया। सो शी लाइक्स मी, तो ये मैं ऑब्जेक्टिव केस के तौर पर यहाँ पर हैं हम। तो सोफिया लाइक्स मी बट नॉट हिम, अब उसे पसंद नहीं करी। अब हिम कौन है? असलम, अकरम, अमजद में से कोई है, और हमने असलम, अकरम की जगह पर हिम का इस्तेमाल किया। John will call you soon. You, I'm not naming you. Anybody else, anybody. So anybody, you is called you. तो John will call you, तुम्हें कॉल करेगा, तो तुम्हारी जगह पे असलम, अमजद की जगह पे you का वर्ड यूज़ किया। Don't tell her the truth. इस तरह से I helped him pull his boot off, तो यहाँ पर वर्ड him, her, you, me और him, ये जो 5 लेटर इन 4 लाइनों में यूज़ हुए हैं, वर्ड जो यूज़ हुए हैं, these are called object pronoun. And now we need to jump to the second category, that is called reflexive pronoun. The reflexive pronoun will end in self or selves and is used in reference to another pronoun. उसका दूसरे pronoun के साथ reference होता है। Word within the category are himself, herself, themself, yourself, myself and itself. Look at now the examples. He takes care of himself. वो अपनी ज़ात की केयर करता है, तो यहाँ पर वर्ड हिमसेल्फ यूज़ हुआ। शी कैन डू इट बाय हर सेल्फ, वो बजाते खुद ऐसा कर सकती है। यू कैन ट्रेवल बाय योर सेल्फ, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम सफ़र खुद कर सकते हो। सो इन इंग्लिश रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर यूज व्हेन अ पर्सन और अ थिंग एक्ट्स ऑन इटसेल्फ। अपनी ज़ात पर, अपने ब्याह पर कोई काम करता है तो उसके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिस्ट आपके सामने पहले भी दी हुई है, अब दोबारा है। myself, yourself, himself, herself, itself, ourself and yourself. So then moving to the example, she tried it herself and Tom hurt himself.
ये दोनों लाइनें बिल्कुल उसी तरह से जो हमने पहले डिस्कस कर ली हैं. इन इंग्लिश दे ऑल एंड इन सेल्फ आर सेल्व्स एंड मस्ट रिफर टू नाउन फ्रेज एल्सवेयर इन द सेम क्लास. और इसी तरह से क्या है, सेम क्लास के अंदर एल्सवेयर इन द सेम क्लास वो अपने आप को यूं ही रिप्रेजेंट करेंगे. तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बेसिकली यूज उस वक्त किए जाते हैं व्हेन अ पर्सन और अ थिंग एक्ट्स ऑन इटसेल्फ. पोजेसिव प्रोनाउन अगेन वेरी सिंपल. इन इंग्लिश पोजेसिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू इंडिकेट पोजेशन और ओनरशिप. ये मलकियत को जाहिर करते हैं, आपकी ओनरशिप क्या है किसी चीज़ के मुतल्लक. दे आर माइन, योर्स, हिज, हर्स, अवर्स, योर्स एंड देयर्स. So let's see how these word can be used. So look at now example number 1. Do you see that woman over there? Her dog is very friendly. अब यहाँ पर हमने लफ्ज़ हर यूज़ किया. उसका कुत्ता जो है वो फ्रेंडली है, तो हमने हर यूज़ किया है उस खातून की जगह पर. सो दिस इज पोजेसिव प्रोनाउन, जो उसकी मलकियत. हर डॉग, लुक एट नाउ, यहाँ पर हर जो है वो उसकी मलकियत को शो कर रहा है. तो यहाँ पर हर का वर्ड जो है वो एज ए पोजेसिव प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है. इज दैट योर हाउस? नो, अवर्स इज द वन बी साइडेड. ये तुम्हारा घर है. आगे से आंसर का जवाब देने वाला कहता है नो, अवर्स. अब आगे है अवर्स इज द वन आउट बी साइडेड. हमारा जो है बिल्कुल इसके साथ है, तो अवर्स मीन हमने एस लगाया है, तो अवर्स इज द वन बी साइडेड जो इसके साथ है. तो यहाँ पर जो वर्ड अवर है वो उसकी मलकियत को शो कर रहा है. Here is my laptop. ठीक है. It's mine. It's mine. ये मेरा है. तो यहाँ पर वर्ड जो है शुरू में राइट इन द बिगनिंग क्या आना चाहिए? Here is my laptop. तो ये मेरा लैपटॉप. इट्स माइन, ये मेरा है. अब मलकियत शो हो रही है कि ये मेरा है, तो माइन का वर्ड जो है वो पोजेसिव प्रोनाउन है. These books are mine, not yours. ये किताबें मेरी हैं, तुम्हारी नहीं है. तो योर्स जो है तुम्हारी मलकियत के लिए इस्तेमाल हो रहा है. This is my mother's book. This is my brother's book. It is his. ये उसकी है. अब his जो है वो उसकी क्या कर रहा है? पोजेशन को इंडिकेट कर रहा है. दो तरह से इस्तेमाल हो रहा है. सो एनीवे his जो है वो यहाँ पर पोजेशन शो कर रहा है, तो हम यहाँ पर इसको पोजेसिव प्रोनाउन कहेंगे. Now let's move to the another one. Demonstrative pronoun. This type of pronoun is used to indicate something. The word in the categories are these, those, that and this. तो जब ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं तो ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, किसी चीज़ का इजहार कर रहे हैं. दिस यहाँ पड़ी हुई, दैट वो कुछ फासले पर पड़ी हुई है. तो ये जो इंडिकेशन कर रहे हैं अल्फाज, दिस शो they are demonstrating the position of one particular thing. The book is here, that book is over there on that table. तो वो किताब उधर दूर पड़ी है. these ये करीब है, those वो दूर है. so these word demonstrate, शो करते हैं उसके की लोकेशन कहाँ पर है. इस तरह से इन demonstrative pronouns का इस्तेमाल किया जाता है. these are the shoes that I am going to wear. These are the shoes. ये look at them. ये हैं वो शूज़. तो क्या कर रहे हैं? ये उनकी तरफ इंडिकेशन है, इशारा है. ये लोकेशन भी बता रहे हैं, उनकी तरफ इंडिकेशन भी करते हैं. सो these are the shoes. ये वो जूते that I am going to wear. I'm gonna wear, जिनको मैं पहनने वाला हूँ. So he likes the green flowers, but he prefers those red ones over there. He likes the green flowers. He likes the green flowers, but he prefers those. उसे ग्रीन भी पसंद है, लेकिन हमें नहीं पता ग्रीन कहाँ पड़े हुए हैं. बट ही प्रीफर दोज रेड्स ओवर देयर. वो जो वहाँ सुर्ख है ना, उनको वो पसंद करता है. तो इसका मतलब इशारा कर दिया कि उस तरफ. तो दीज का लफ्ज़ और दोज का लफ्ज़ जो है ये जिस तरफ इशारा करे, इंडिकेशन करे या उनकी लोकेशन को इंडिकेट करे. सो those word which refer to that situation or a thing is called as demonstrative pronoun. तो ये demonstrative pronoun. I would like that one. I would like that one. क्या that one क्या है? वो वाली चीज़. वो कुर्सी है, टेबल है, चेयर है, पेंसिल है, whatever you may call it as. So I like that one. मुझे वो चीज़ पसंद है. तो that one indicate कर रहा है किस तरफ, कि ये इशारा उस चीज़ की तरफ है, लिहाजा ये डिमॉन्स्ट्रेशन दे रहा है कि वो चीज़ वहाँ पड़ी हुई है. तो इस तरह इन अल्फाज को हम क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. द डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर द सेम वर्ड एज द डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स.
दिस दैट दीज एंड दोज, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं. सो दे ऑफन डिस्टिंग्विश देयर टारगेट बाय पॉइंटिंग और सम अदर इंडिकेशन ऑफ पोजिशन. तो मैंने पहले बताया आपको कि ये क्या कहते हैं, दे ऑफन डिस्टिंग्विश देयर टारगेट्स, इनके टारगेट को वो वाजे करते हैं, बाय पॉइंटिंग और सम अदर इंडिकेशन ऑफ पोजीशन. तो जो मैंने लफ्ज़ लोकेशन का इस्तेमाल किया वो पोजीशन ही बात है कि उस पोजीशन को या लोकेशन को ये इंडिकेट करते हैं और उनको पॉइंट आउट करते हैं, उनकी तरफ इशारा करते हैं. दे कैन बी ईदर नियर और फार इन डिस्टेंस और टाइम स्पेसिफिकली. तो ये कुछ चीज़ फिजिकली वहाँ पड़ी हो सकती है या टाइम में 400 साल पहले, इन दैट सेंचुरी, पिछली सदी में, तो उस तरफ इशारा हो सकता है. लिहाजा ये टाइम की इंडिकेशन भी करते हैं. सो द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज दैट, दिस, दैट, दीज एंड दोज. लुक एट नाउ अदर एग्जांपल. दिस इज एन एनामस फील्ड. दिस इज एन एनामस फील्ड. तो ये दिस बहुत बड़ा फील्ड है, तो दिस की तरफ इंडिकेशन कर रहा है. तो लिहाजा दिस का लफ्ज़ जब ऐसी बात इससे शो होती है तो इसे डेमोन्स्ट्रेटिव पोजीशन में है. सो इट इज़ कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. कैन यू सी दैट, कैन यू सी दैट, वो मैं इशारा करूँ, कैन यू सी दैट, क्या तुम वो देख सकते हो. तो दैट जब मैं कहूँगा दैट मीन इशारा होगा, तो वो दैट का लफ्ज़ इंडिकेशन कर रहा है कि वो चीज़ जो पड़ी हुई है. सिमिलरली दीज आर डिलीशियस कुकीज़. ये बिस्किट बड़े डिलीशियस हैं, ये वाले बिस्किट, वो वाले नहीं. दीज आर डिलीशियस कुकीज़. सो लुक एट नाउ, वी कैन गेट इट ओवर हियर दैट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इंडिकेट द लोकेशन, position, either physically somewhere or in time. So then comes next indefinite pronouns. Indefinite pronouns, the indefinite pronouns is used to talk about something which is not specific, जो चीज़ मखसूस नहीं है. Word in category are all, few, none, either, one, nobody, both, anyone, several, etc. So look at now the first example. Nobody is going to the party. Nobody. Nobody कौन नहीं, ये 10 लोग बैठे, मैं कह रहा हूँ कोई भी पार्टी में नहीं जाएगा. ये 40 लोग आप बैठे हैं, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ये कोई भी पार्टी में नहीं जाएगा. कौन सी पार्टी, जो फलां दिन पार्टी होनी है. तो कोई भी नहीं जाएगा, मैं किसकी तरफ इशारा करूँ, कोई पता नहीं. तो इनडेफिनेट है. नॉट definite position is indicated over here, neither the definite person is being indicated here. So it means nobody is going to the party. ये indefinite है nobody इसमें. There are several people in my class. There are several people. Several बहुत सारे हैं, कौन सा है, identify नहीं हो रहा. लिहाजा several का word जो है वो indefinite है यहाँ पर. I like both of these photos. Both of these photos. So यहाँ पर both का word जो है, both of these photo, मैं इन दोनों को पसंद करता हूँ. ये वाली या ये वाली, डायरेक्टली नहीं, एग्जैक्टली इंडिकेशन नहीं है. तो राउंड अबाउट है बोथ, दोनों को. तो ये जो दोनों का लफ्ज़ जो है क्लियर नहीं है, एक की तरफ वाज़ेह इशारा नहीं है, लिहाजा बोथ जो है वो भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है. एन इंडेफिनिट प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट रिफर्स टू नॉन स्पेसिफिक बीइंग. नॉन स्पेसिफिक बीइंग, जैसे कि दोनों को, कौन मखसूस है, मखसूस किसी को नहीं किया. नॉन स्पेसिफिक बीइंग ऑब्जेक्ट्स आर प्लेसेस. वो जगह भी हो सकती हैं, वो ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, और वो अशखास भी हो सकते हैं. Indefinite pronoun can also function as other part of speech too. Indefinite pronoun जो है can also function as other part of speech too, depending on context. वो context के हवाले से वो यूज़ हो सकते हैं. मसलन indefinite pronoun list पहले भी बता चुका हूँ. another, nobody, anyone, anything, each, either, enough, everybody, everyone and everything, and there are so many others. So look at another pronoun example. इसकी example क्या है? I don't want anyone to see it. I don't want anyone to see it. अब यहाँ पर जो anyone का वर्ड है वो indefinite pronoun है. Is there anything in the box? क्या इसमें कुछ है, हमें नहीं पता, कौन सा, मखसूस नहीं कर रहे, तो ये indefinite है. We can't blame him for everything. We can't blame him for everything. हम उसे हर चीज़ के लिए blame नहीं दे सकते. Each company is fighting to protect its own commercial interest. Much has happened since we met. So look at here now in 5 example. Much, each, everything, anything, anyone. ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, ये indefinite pronouns. And so these are the indefinite pronouns. No one can cope with her in English. तो उसके साथ कोई इंग्लिश में मुकाबला नहीं कर सकता. तो no one is here. Again that is called as
indefinite pronoun. Relative pronouns. This type of pronoun can be used as a way of giving individual information within a sentence. Relative individual information देंगे. Pronoun in this categories are that, who, which, whom. देखिए, this is my brother who lives in New Zealand. ये मेरा भाई है जो तो ये सेंटेंस के अंदर क्या करते हैं, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं विद इन अ सेंटेंस. सो अगेन लेट मी रीड इट अगेन. दिस टाइप ऑफ pronoun can be used as a way of giving additional information within a sentence. ये अजाफी इंफॉर्मेशन मिलती है. दिस इज माई ब्रदर, ये मेरा भाई है. अब ये तो बात मुकम्मल हो गई थी, ये मेरा भाई है. हु लिव्स इन न्यूजीलैंड, जो न्यूजीलैंड में रहता है, तो हमने यहाँ पर वर्ड हु यूज़ किया. ये रिलेशन बता रहा है मेरे भाई का कि ये वहाँ रहने वाला है. तो हु का लफ्ज़ जो है इस फिक्रे के अंदर एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है. दिस इज़ द बॉल दैट माई dog likes best. This is the ball that my dog likes best. ये वो बॉल है that my dog, जो मेरा कुत्ता क्या करता है, likes best. तो यहाँ पर that का वर्ड जो है ये अगेन क्या कर रहा है, relative pronoun इंडिकेट कर रहा है. that my dog, मेरा कुत्ता, इसको, तो इसकी तरफ इशारा है. that my dog likes best. तो ये वो बॉल है जिसको मेरा कुत्ता पसंद करता है. तो यहाँ पर that एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वरना दिस इज द बॉल फिक्रा मुकम्मल था. That और इस बॉल को my dog like pets. So this is how we can use this word. A relative pronoun is a pronoun that relates to the word that it modifies and is not specific. ये क्या है, बात उसको दोबारा डिटेल में कर रहे हैं. इज अ pronoun that relates to the word, ऐसे लफ्ज़ के साथ रिलेट करता है, that is modified and is not specific, उसको बदल देता है, उसके मायनों में तब्दीली लेता है और स्पेसिफिक नहीं होता. इन इंग्लिश रिलेटिव pronoun हु, होम, विच, हुज, दैट वगैरह हैं. इनके एग्जाम्पल हम ऊपर देख चुके हैं. आप फर्दर मजीद एग्जाम्पल देखते हैं. दे रिफर बैक टू द पीपल और अ थिंग प्रीवियसली मैंशनड, जो पीछे जिनका इजहार किया होता है ना, जैसे ऊपर फिक्रे दो पढ़े हैं, ये उनकी तरफ बैक में जाकर रेफरेंस देता है. अब एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर. तो इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे, द वुमन हु कॉल्ड यस्टरडे वांट्स टू बाय द हाउस. द वुमन, वो औरत, हु कॉल्ड यस्टरडे वांट्स टू बाय द हाउस, वो जिसको कल बुलाया गया, जिसको कॉल की गई, उसने कहा कि वांट्स टू बाय द हाउस, वो ये घर खरीदना चाहती है. तो हु उसके लिए इशारा है. नाउ दे वर ड्राइविंग बाय द हाउसेस, अब उन घरों के करीब ड्राइविंग कर रहे थे. विच एंडी हैड डिस्क्राइब्ड, जिनकी तरफ एंडी ने इशारा किया था और उनको डिस्क्राइब किया था. शी इज़ एन आर्टिस्ट हुज वर्क इज़ रियली एडमायर, आई रियली एडमायर. शी इज़ एन आर्टिस्ट, ये वो आर्टिस्ट है जिसका काम, तो ये दोबारा वापस बैक जा रहा है, जिसका काम, शी की तरफ इशारा कर रहा है, जिसका काम, वर्क आई रियली एडमायर. तो यहाँ पर हुज का वर्ड जो है दैट इज इंडिकेटिंग a pronoun that is relative pronoun having a relation with the word she. So whose, she के साथ relate हो रहा है. The author whom you criticize in your review has written a letter in reply. The author, वो author whom you criticize, जिसको तुमने criticize किया, तो वो author जिसको तुमने, whom फिर इशारा कर रहा है author की तरफ. तो इस तरह से ये हमें पता होना चाहिए, जो हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं इंग्लिश में अपने आप को एक्सपर्ट करने के लिए, वेल वर्स करने के लिए, हमें ज़रूरी है कि हम इन अल्फाज की तरफ देखें और इनको यूज़ करें. अब आते हैं मज़ीद एग्जांपल्स की तरफ. इंटेंसिव प्रोनाउंस इज़ यूज्ड एज अ रेफरेंस टू अनदर प्रोनाउन और अ नाउन इन द सेम सेंटेंस एज अ वे ऑफ एम्फेसाइजिंग इट, उसकी तरफ इशारा करते हुए भी ये क्या करता है, यूज़ करता है उसको. सो लुक एट नाउ, द डॉग कॉट द बॉल इटसेल्फ. द डॉग काट द बॉल इटसेल्फ. अब ये देखें, इटसेल्फ का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर. सारा कुक्स डिनर हर सेल्फ, आई ईट माई कैंडी माई सेल्फ. तो यहाँ पर द डॉग काट द बॉल इटसेल्फ, डॉग ने खुद ही बजाते खुद उसको पकड़ा है. तो यहाँ पर इटसेल्फ का जो वर्ड है ये इंटेंसिफाई कर रहा है कि बजाते खुद उसने ऐसे किया है. तो लिहाजा ये देखें, ये रिफ्लेक्सिव की शक्ल में आपको इंटेंसिव केस नज़र आ रहा है. सारा कुक्स डिनर हर सेल्फ, बजाते खुद जो है वो क्या करती है, खाना पकाती है. ईट माई कैंडी माई सेल्फ. सो दीज आर कॉल्ड एज इंटेंसिव प्रोनाउन. वो एम्फेसाइज करते हैं, जब एम्फेसाइज करते हैं तो वही रिफ्लेक्सिव वर्ड जब आपके इंटेंसिव बन जाते हैं.
Interrogative pronoun. An interrogative pronoun is used in a question, the word within the category who, which, where, how and what. जब इन अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है तो ये अल्फाज जो हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। इसका मतलब यह है जब जिनसे सवाल किया जाए, हाउ मैनी पीपल डू यू हैव, सॉरी हाउ मैनी एप्पल्स डू यू हैव, हाउ मैनी पीपल आर हियर वगैरह वगैरह, तो कितने एप्पल हैं तुम्हारे पास। विच वे इज़ द होटल, किस रास्ते पर होटल है, किस जगह पर होटल है। विच वे, तो हम यहाँ पर विच और हाउ के वर्ड यूज़ करें। इज़ दैट वेयर द चेयर गोज, क्या ये वही है। इज़ दैट वेयर द चेयर गोज, तो यहाँ पर इस फिक्र में देखें इज़ इस्तेमाल किया, सवाल कर रहे हैं। विच वे इज़ द होटल, यहाँ पर विच से सवाल कर रहे हैं। हाउ मैनी पीपल डू यू हैव, सॉरी अगेन आई एम सॉरी फॉर दैट, हाउ मैनी एप्पल्स डू यू हैव, कितने एप्पल हैं तुम्हारे पास। तो यहाँ पर हाउ विच इज़ जो है ये लफ्ज़ सारे क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, लिहाजा इनको इंटरोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। द लास्ट वन ओवर हियर इज़ द रेसिप्रोकल प्रोनाउन. Reciprocal pronoun is used to show an action or feeling which is reciprocated. Words in this category are one another and each other. तो इसमें one another और each other दोनों एक दूसरे को reciprocate करते हैं. They are happy with each other. दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं. The two friends really care about one another. एक दूसरे की वो क्या करते हैं, केयर करते हैं. They are two friends. The two friends really care about one another. तो एक दूसरे के लिए वो केयर करते हैं. तो ये लफ्ज़ जो एक दूसरे को रिफ़र करते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं, इनको रेसिप्रोकल नाउन कहते हैं. हमने 1000 बार पढ़ा होगा कि ईच अदर क्या होता है, वन अनदर क्या होता है, लेकिन ये नहीं पता होगा कि ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है. सो आई वुड लाइक टू से लुक एट नाउ द importance of these words. We need to know their proper and particular name and their function in the sentence. Unless we know it, we will be at ease. And if we don't know the proper position and their importance in a sentence and their structure and the role played by, तो हम आसानी के साथ क्या नहीं कर सकते, उन फिक्रात को ना तो डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं और ना ही उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो ऑल दिस. थैंक यू वेरी मच गाइस for your attention, and inshallah tomorrow we'll have a detailed discussion how to correct the mistakes which are normally happen in the correction of pronoun, which we normally use and make mistakes while writing these sentences, and hopefully we'll have a big list over there. Thank you very much.